everyone. Hope you all are doing well and studying hard. Today's newspaper, we had a lot to cover. We will understand the relation of international relation of Myanmar and India and Maldives. Then we would cover the recently news hit and run case and the strike which is being seen in different parts of the country. Then we would go through the governor Raj Bhavan. There was this article about the role of governor and how its public presence is impacting and deteriorating the relation between union and state. So let's get started. First of all, I would like to start with this India Myanmar relation. They there's this there's this India and Myanmar, okay, both are the close partner and have common colonial history. Both were under the British rule for over a long period of time. Okay, both have a porous border. Both have porous border. Okay, I think now it's good. And India, Myanmar, both have a positive relation. Okay, we do not see any news or any. Have very positive border. That's why it's porous. There's no fencing and all. Myanmar have helped India a lot, and India had also reciprocated in the same way. Like, there was this group called National Socialist Council of Nagaland. It demanded larger Nagaland territory, which included some part of Myanmar. Okay, so India conducted a surgical strike, like it did it with Pakistan, and in that surgical strike, Myanmar army helped India a lot. Okay, this National Socialist Council of Nagaland had ambushed Indian security forces, so that was the reason that India had to conduct that surgical strike, and this impacted the relation between these two countries, and they became closer. Okay, Myanmar is very crucial for India because it connects India with Southeast Asia, and it's the only ASEAN country which shares border with the India. Okay, before going through the recent happening, it would be better to understand the historical relation between these two countries. Okay, so it is better to go the polity of earlier polity of Myanmar. Myanmar had gone undergone a transition. Okay, earlier it was under British era, then it was under military rule, then democracy was established, and again there is a coup which can we can see happening over there. Okay, so in 1962 there was military rule present over there. Okay, then which the public obviously demanded to restore the democracy, and it was headed by this lady Aung San Suu Kyi. Okay, she was the head of National League of Democracy in Myanmar. In 2008, the military adopted the new constitution, but there was a provision in the constitution which says that person with children of foreign would not be allowed to contest the election, and this was directly targeting this lady. Okay, because uh, because she had children who were British, that's why. So this provision made her illegal to be the PM of Myanmar. Okay, then the election was conducted in 2010, and this uh, Aung San Suu Kyi, she was house arrested and was not allowed to participate in 2012. The election was
over, and by election again was made, and there was very series of instability which was seen in Myanmar. At the end, she was made a de facto president, and Win Myint was made the PM. So okay. Also, there were several provisions which in turn there was various provision which gave Myanmar army, military army, strong hold on the parliament and the constitution. Like it said that 25% of parliament houses were nominated by the military. Okay, and the election was made just for 75%. Okay, and the constitution also said that defense and home affairs was always with the military irrespective of the government formed. Okay, so this was the political history of Myanmar. Now we can see there's the coup which held in which was held in 2021 of February. Okay, due to this coup, the violence among the citizen was has been increased, which in turn has increased the insurgency. Okay, now people are migrating from Myanmar to India, which in turn is this migration from Myanmar is impacting the demography of Northeast, especially Manipur. The instability in Manipur, there are various reasons for that, but this is one of the reasons that the migration from the Myanmar is impacting the demography of Northeast and especially Manipur. This is the one of the various reason why there is the instability in the Manipur. Okay, also India. What's the position of India on these matters? Is like India is trying to be strategically silent. It is adopting this strategy because Russia and China is somehow supporting the army, while the US government has put various sanctions and has made it very clear that the sanction would be uplifted only if there is the democracy is restored. So amid all these things, India is strategically silent because earlier, as I said, that Myanmar army has helped India in various cases, like here in that when the Nationalist Socialist Council of Nagaland was creating instability in the region. Okay, India and Myanmar have a free movement regime. Okay, ये क्या होता है? ये this is there to increase people to people connectivity. पोरस बॉर्डर होने के मतलब इंडिया का और इसका पोरस बॉर्डर है, तो इससे क्या होता है कि दोनों नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार में जो खास करके जो 16 किलोमीटर का बेल्ट है, यहाँ पे फ्री मूवमेंट रिजीम है, लोग आ जा सकते हैं बिना किसी वीज़ा वगैरह के। इसके लिए सिर्फ इन्हें एक पास चाहिए होता है, एंड दैट पास इज़ आई थिंक वैलिड फॉर 1 ईयर, एंड यू कैन स्टे अप टू 2 वीक पर विजिट। ठीक है, तो ये FMR के चलते आई जस्ट एज आई टोल्ड कि खूब बढ़ गया है, वायलेंस बढ़ गया है, तो इंसर्जेंसी बढ़ रही है, तो पीपल आर entering into the territory of India through this FMR. So in order to prevent this, government has said that in future it will scrap this. Okay, this FMR ये ना 2018 में इंडिया ने लाया था अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। गया उसके बाद और कुछ इसमें आपको जानने का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मेंस आंसर राइटिंग प्रोविज़न से लिख सकते हो तो आप, अगर इन रिलेशन पूछा जाए तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि इंडिया और म्यांमार का हिस्टोरिकल ये रिलेशन है, कल्चरल टाइज है, क्योंकि दोनों ही एक बुद्धिस्ट कंट्री है। सॉरी, म्यांमार एक बुद्धिस्ट कंट्री है और इंडिया एक बुद्धिस्ट ओरिजिन कंट्री है। तो म्यांमार और इंडिया का कल्चरल टाइड है, दोनों का ट्रेडिंग, बोथ आर द गुड ट्रेडिंग पार्टनर। ONGC, विदेश, गेल, इन लोगों ने हेवनली इन्वेस्टमेंट कर रखा है म्यांमार में, एंड दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर इंडिया अडॉप्टिंग स्ट्रैटेजिकल साइलेंस। और फिर ये इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनस्टेबिलिटी इन द रीजन इन म्यांमार इम्पैक्ट इनस्टेबिलिटी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ओके, फिर इंडिया और म्यांमार IM बैक्स एक्सरसाइज कंडक्ट करवाता है।
तो these are the things which we had to understand between India and Myanmar. Okay, फिर एक और था दूसरा न्यूज़ फॉरेन रिलेशन से, इंडिया मालदीव्स का. Okay, so what is happening in Maldives, that Maldives has a very strategic location. It is strategically located in Indian Ocean. So in order to have a stability in this region, Maldives plays a very important role. In recent development, there is a pro-China government which has been elected, and it have anti-India tendency. See, okay. So what is there, that there's a hydrography ships. This has been installed in Indian Navy in Maldives by the Indian government. It is mainly just for the study and conducting surveys of the ocean. और मालदीव्स ने इसको स्क्रैप कर दिया है और इसे हटा दिया है. ठीक है, तो ये इसको हटाना समहाउ एक्सप्लेन्स दिस एंटी इंडिया टेंडेंसी ऑफ द मालदीव्स. ओके, ये हो गया. उसके बाद फिर एक न्यूज़ था इटली पे. इंडिया एंड इटली migration and mobility agreement. Okay, so what's the news is, ये ना जो irregular migration होता है इसको regularize करने के लिए लाया गया है, and it will facilitate movement of various segments like workers, students. So इसमें provisions है like students को 12 month तक temporary residence provide करना, reserve quota मिलेगा workers को. तो ये इन सब की प्रोविजंस हैं, एंड दैट वाज इंडिया एंड इटली माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट. नाउ रिसेंटली ड्यू टू द पार्लियामेंट्री ब्रीचिंग एंड वेरियस थिंग्स, लोकसभा स्पीकर हैज़ एंड लोकसभा राज्यसभा the parliament has removed major members of opposition party, and during that time various laws were enacted like BNS, भारतीय न्याय संहिता. तो व्हाट हैपन ड्यू टू इस कि इसकी अच्छी सी स्क्रूटिनी नहीं हो पाई, डिस्कशन नहीं हो पाया इंडिया में, एंड वेरियस स्टॉक होल्डर्स वेर नॉट कंसल्टेड प्रॉपरली. सो देयर इज़ द प्रोविज़न इन दिस लॉ अंडर सेक्शन 104 सब क्लॉज 2. तो इसमें क्या क्या बात कही गई है, इसमें एक प्रोविज़न है अबाउट हिट एंड रन केस विच स्टेट्स दैट पहले IPC जब था तो उसमें अंडर IPC 2 years ऑफ जेल था. ठीक है, अगर हिट एंड रन केस आता है, बट इसके अंडर में आपको 7 लाख रुपीज़ प्लस 10 year का इम्प्रिजनमेंट आता है अगर आप हिट एंड रन का केस आपके ऊपर रजिस्टर होता है. तो इस प्रोविज़न के चलते जो भी ट्रांसपोर्टर्स है कंट्रीज़ के, इन लोगों ने नेशन वाइड स्ट्राइक स्टार्ट कर दी है. ठीक है, तो अब पहले जानते हैं कि इनकी डिमांड क्या है, इनका मतलब इनका कंसर्न क्या है. इनकी जो बात है ये सामने रख रहा है AIMTC, दैट इज़ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस. ठीक है, तो इनका क्या कहना है कि अगर ये अभी इसको इनैक्ट कर दिया गया है बट अभी लाया नहीं गया है, तो इनका क्या कहना है कि इंडिया में ऑलरेडी 25-30% ऑफ ड्राइवर शॉर्टेज है. ठीक है, अगर ये इनैक्ट हो जाता है तो फिर बहुत ड्राइवर की डिफिशेंसी हो जाएगी. उसके बाद फिर ये कहीं ना कहीं फिर इम्पैक्ट करेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज को. उसके बाद फिर ड्राइवर्स का ये कंसर्न है कि कई बार हिट एंड रन केसेस में अगर वो भाग जाते हैं क्योंकि दे आर स्केयर ऑफ द मॉब लिंचिंग. सो ये अगर रहेगा तो वहाँ पे मतलब मान लो अगर वो रुक जाते हैं तो वायलेंट पब्लिक इतनी हो जाती है कि उन्हें मार पीट देते हैं, तो इसीलिए वो भाग जाते हैं. फिर दूसरा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक्सीडेंट होता है तो एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, और जो विक व्हीकल लाइक ट्रक वो बिल्कुल उनको फ्रेम कर दिया जाता है कि हाँ इन्होंने ही ऐसा किया होगा. तो दीज आर दी कंसर्न्स इन इस बॉडी के इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ये इस प्रोविज़न के लिए. ठीक है, बट हर लॉज के अपना है. तो गवर्नमेंट का क्या कहना है कि केसेस बहुत ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं एक्सीडेंट्स के इंडिया में. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू रेगुलेट इट, कंट्रोल इट, ये लॉ लाया गया है कि अगर इस तरह का लॉ रहेगा तो लोग भागेंगे नहीं, एंड दे विल एंड इन टर्न ये कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट्स है, रोड एक्सीडेंट्स है, वो कम करेगा. ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था. उसके बाद फिर एक था एडिटोरियल था, चेंज इन न्यूक्लियर ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड.
सो इन दिस एडिटोरियल्स में बात कही गई थी कि पहले मतलब ये यूएस और यूएसएसआर, ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियर कंट्री, ये मतलब ये दोनों न्यूक्लियर कंट्री थे और एक ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर क्रिएट हुआ था कोल्ड वार इरा में, ठीक है, इन दोनों के प्रेजेंस में, ठीक है। और इन दोनों में पावर को लेके इतना इम्बैलेंस हो गया था कि 1962 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस होते होते रह गया था। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, इसमें क्या हुआ था ना कि दोनों कंट्री आमने सामने आ गई थी और दोनों ही न्यूक्लियर वार के लिए ऑलमोस्ट रेडी थे। और इम्पैक्ट वगैरह को देखते हुए इन लोगों ने रियलाइज़ किया कि मतलब ये जो न्यूक्लियर पावर होना इज़ नॉट अ गुड थिंग, मतलब हमें इसे मतलब नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर वार नहीं होना चाहिए, एंड वी हैव टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू कंट्रोल इट्स स्प्रेड। सो इन लोगों ने फिर एनपीटी लाया, ठीक है, जिसका इनैक्टमेंट हुआ 1970 में। फिर 1974 में इंडिया ने ना स्माइलिंग बुद्धा लॉन्च किया, ठीक है। तो इन रिस्पॉन्स टू 1974 स्माइलिंग बुद्धा 7 कंट्रीज़ लंदन में मिले और एक लंदन क्लब का मतलब एक तरह से लंदन क्लब वाज हेल्ड, तो जिसमें यूएस, यूएसएसआर, कनाडा, फ्रांस, यूके, जापान, जर्मनी ये सब प्रेजेंट थे। और फिर उसके बाद फिर इसको ही बाद में न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जिसमें 48 मेंबर्स से वो कहा गया, ठीक है। तो एनपीटी का है, फिर एक एनएसजी है। तो इसमें इस एडिटोरियल में आप जब जाओगे तो आपको ये सब बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे और जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई वुड से कि आप एक बार उसको पढ़ लो। बैकबोन बस यही है उस एडिटोरियल का वैसे। फिर एक और न्यूज़ था जिसमें कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कहा है कि सीए का जो रूल्स है इसको नोटिफाई कर देंगे बिफोर द लोकसभा इलेक्शन। अब सीए मतलब बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और सबको पता है, मतलब ऑलमोस्ट लोगों को पता है। दिस वाज इनेक्टेड इन 2019 विच सेड दैट कि माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप लाइक सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी हिंदू क्रिश्चियन ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दिया जाएगा, जिसके चलते बहुत ही हंगामा खड़ा हुआ था, ठीक है। क्या क्या इसके क्यों हंगामा क्यों खड़ा किया था, इसके लिए कंसर्न क्या थे। तो द कंसर्न कि ये नन मुस्लिम्स को ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए कहा जाता है, ये अगेंस्ट फंडामेंटल राइट है, ये अगेंस्ट आर्टिकल 14 है, इक्वल इसमें सबको नहीं ट्रीट किया जा रहा है। उसके बाद फिर ये कहीं ना कहीं असम, जो नॉर्थ ईस्ट का असम अकॉर्ड ऑफ 1985 था, इसके अगेंस्ट था, जिसमें कहा गया था कि इलीगल माइग्रेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जो बांग्लादेश से माइग्रेट होके आए थे आफ्टर 25 ऑफ मार्च 1971, इनको वापस डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये जो सीए था इसको कहीं ना कहीं वो कर रहा था। उसके बाद फिर ये बोला गया कि ठीक है चलो मानते हैं कि ये जो रिलीजियस माइनॉरिटी है यहाँ पे परसिक्यूट कर रही है, बट और भी दूसरी रिलीजियस माइनॉरिटी लाइक तमिल जो है श्रीलंका में, उसके बाद फिर रोहिंग्या है म्यांमार में, तो इन लोगों का भी परसिक्यूशन हो रहा है, बट आप इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरा मेजर कंसर्न था कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कौन इलीगल माइग्रेंट है और कौन एक्चुअली में परसिक्यूटेड है। तो ये सब मेजर कंसर्न्स थे सीए को लेके, ओके। एक ये न्यूज़ था। उसके बाद फिर एक है आई थिंक हाँ ये एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर installation, okay. So this was signed between Rajiv Gandhi and Benazir Bhutto in 31st of December 1988। इसमें क्या कहा गया था ना कि हर साल जनवरी में इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ विल गिव द लिस्ट ऑफ ईच अदर्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन टू ईच अदर, ताकि कल को फ्यूचर में अगर अटैक वटैक हो तो हम ये ऐसे जहाँ भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वहाँ पे फर्दर डैमेज ना हो, वहाँ पे हम अपना जो भी मिसाइल लॉन्च हमारा जो भी मिसाइल वगैरह हम वहाँ पे ना करें। तो इसीलिए ये लिस्ट वगैरह एक दूसरे को करते हैं, ठीक है। अंडर दिस इट इज बोथ द पार्टी इन्फॉर्म ईच अदर अबाउट देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिक्योरिटी मेजर, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एग्रीमेंट। और जनवरी में लिस्ट को एक्सचेंज किया जाता है एज आई सेड। उसके बाद एक ये न्यूज़ हो गई। फिर दूसरी न्यूज़ थी
ब्रिक्स. सो एवरीवन नोज कि ब्रिक्स में एज ऑफ 1 जनवरी 2024 6 countries were also joining, like Saudi Arabia, Egypt, Ethiopia, ईरान, यूएई, अर्जेंटीना. ठीक है, ये सब ज्वाइन करने वाली थी, बट अर्जेंटीना हैज़ नाउ विदड्रॉन फ्रॉम ज्वाइनिंग दी ब्रिक्स, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ ये इनका स्पेक्यूलेशन है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट, ये जो अभी अर्जेंटीना में न्यूली इलेक्शन हुआ है जिसमें राइट साइड गवर्नमेंट फॉर्म की है, एंड दे इनका फियर है, इनका स्पेक्यूलेशन है कि चाइना जो है सोशलिस्ट प्रोपोगंडा ब्रिक्स पे प्रोलिफरेट करती है. दैट्स वाज द रीज़न दैट कि इसने विड्रॉ कर लिया, अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया है ब्रिक्स ज्वाइन करने से. ओके, सो दैट वाज द अदर न्यूज़. एंड देयर वाज दिस न्यूज़ अबाउट NGT, नेशनल ग्रीव ट्राइब्यूनल. इसने सियोमोटो एक्शन लिया है, जिसमें अबाउट द रिपोर्ट विच सेड दैट कि इंडिया में जो अंडरग्राउंड वाटर में आर्सेनिक एंड फ्लोराइड की जो कंटेंट है वो बढ़ रही है. ठीक है, फ्लोराइड की जो आर्सेनिक की कंटेंट है ना 5 times ज़्यादा है एज द WHO रिकमेंडेशन. ठीक है, और फ्लोराइड की भी मात्रा बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर में बढ़ रही है. तो इसने बोला है कि आप इसको मतलब कंट्रोल करो, मतलब इसके लिए प्रॉपर एक्शन लो, क्योंकि बोथ आर द टॉक्सिक. ये टॉक्सिक होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, और ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है. ओके, फिर एक और न्यूज़ था कि MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है BR कंबोज को. सो ये दिस वाज वन मोर ऑफ अ फैक्चुअल न्यूज़ विच वाज कवर्ड. फिर एक थी मातारबोरी पोर्ट. सो दिस पोर्ट इज़ लोकेटेड इन बांग्लादेश, एंड ये बांग्लादेश का फर्स्ट डीप सी पोर्ट होगा. ठीक है, व्हाट इज़ डीप सी पोर्ट? तो ऐसा पोर्ट जहाँ पे लार्ज बल्कि वेसल्स वगैरह रखा जा सकता है. ठीक है, और ये पोर्ट जो है ना, ये जापान के असिस्टेंस के थ्रू डेवलप हो रहा है. ओके, इंडिया है जो प्लान कर रहा है इस पोर्ट को थ्रू द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, सो दैट गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई बढ़ सके. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़. थैंक यू.